स्वहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. Good morning, my dear students. Today's thought is given by Nelson Mandela, one of the eminent personality of the world. He told that education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति और एक बहुत बड़े वहाँ के सम्मानित व्यक्ति, विश्व के भी, नेल्सन मंडेला, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने ये महत्वपूर्ण विचार दिया कि शिक्षा एक इतना शक्तिशाली शस्त्र है कि इससे आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं. इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा सुझाव है कि आप अपनी शिक्षा अच्छे तरीके से पूरी करें और समाज के बदलाव में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन करें. Thank you very much to all. Now come to the point. Yesterday we have talked about Managers Commission and today we will talk about Partners Commission. Yesterday I told in this class that Managers Commission is a charge against profit. That's why either profit or loss in the partnership business, it will be calculated and debited in profit and loss account. But Partners Commission is an appropriation out of profit. That's why when the firm is in gain position and if the firm will earn profit, then it will be given to partners and debited in profit and loss appropriation account. Now we will see this question. See here. A and B are partners in a firm. A and B are partners in a firm. एक फर्म है, साझेदारी व्यवसाय, उसमें ए और बी दो साझेदार हैं. ए इज इंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ ₹15,000 पर मंथ. ए इंटाइटल्ड है, अधिकारी है 15,000 रुपया पर मंथ सैलरी का. तो पहले इस 15,000 को इंटू 12 कर लीजिए. इंटू 12 तो जो सैलरी आएगी आपकी, उसको कहाँ आप दिखाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, यहाँ क्रेडिट साइड में. This is 2H salary. And a commission of 10% on net profit before charging any commission. और A को कमीशन भी मिल रहा है, नेट प्रॉफिट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन. दूसरा पार्टनर B इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट. B को भी अधिकारी है 10% कमीशन लेने का नेट प्रॉफिट पे आफ्टर चार्जिंग कमीशन. दोनों में देखिए अंतर क्या है. ए के लिए क्या दिया गया है? कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन. ये बिफोर शब्द का प्रयोग किया गया है, याद दीजिए. बी इज इंटाइटल टू ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन. यहाँ आफ्टर शब्द का प्रयोग किया गया है, बिफोर एंड आफ्टर. इसी दोनों शब्द में इसके कैलकुलेशन का राज छिपा हुआ है. पार्टनर्स कमीशन, कैसे पार्टनर्स कमीशन को कैलकुलेट किया जाएगा, बिफोर एंड आफ्टर में ध्यान देने की आवश्यकता है.
Net profit for the year ended 31st March 2018 4,40,000. You are required to show distribution of profit. कहाँ किया जाता है? You know very well that you must open profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2018. This is profit and loss appropriation account. Here in credit side you will write 4,40,000 net profit, like profit and loss account you will write. And debit side you will write age salary 1,80,000, 15,000 into 12. 15,000 into 12 equal to 1,80,000 in debit side to age salary. After that you will calculate age commission. Age commission. It will be 4,40,000 into 10 by 100. Why? Because in the question it is clearly given that age entitled to a salary of rupees 15,000 per month and a commission of net profit before, this is the word, before charging any commission. इस तरह का यदि कोई शब्द उपयोग किया गया है बिफोर करके, तो आप क्या करेंगे, कैसे कमीशन निकालेंगे? 4,40,000 प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाई 100. तो ये आपका आ जाएगा 2H कमीशन. You will write in debit side of profit and loss appropriation account 44,000, right? But in case of B is entitled to a commission of 10% of net profit after charging commission. यहाँ एक शब्द है आफ्टर शब्द का प्रयोग किया गया है. बिफोर और आफ्टर, ए के लिए बिफोर और बी के लिए आफ्टर शब्द का प्रयोग किया गया है. तो यहाँ जब आप कमीशन निकालेंगे इस नेट प्रॉफिट पे 4,40,000 पे और बी, तो ये क्या होगा? 4,40,000 इंटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, यानी 110. ये तो आपका कमीशन कितना आएगा? 40,000. यू विल राइट टू बीस कमीशन इन डेबिट साइड एंड देन यू विल फाइंड आउट दिस divisible profit in debit side 1,76,000. You will divide this profit among A and B. A और B में इस प्रॉफिट को बांटा जाएगा. Profit sharing ratio is not given in the question. You are required to show the distribution of profit only. This is given. You are required to show the distribution of profit. But profit and sharing ratio is not given. Then you know that as per Partnership Act 1932, if profit sharing ratio among the partners is not given in the question, then the profit will be shared equally among all partners. तो इसका अप्लाई करते हम लोग क्या करेंगे, इसको बराबर बराबर दोनों साझेदारों में बांट दिया जाएगा. The profit will be transferred to H capital account and B's capital account. कैसे? This 1,76,000 will be distributed equally between A and B. 88,000, 88,000. This is the story of partners commission, right? To A and to B. And I hope that you have enjoyed very well and you will practice practical question number 8 at your home. This is your homework. Now next question. My dear students, A and B are partners in a firm sharing profits in and losses in the ratio of 3:2. यहाँ लाभ हानि का अनुपात दिया हुआ है.
3/5 and 2/5. 3/5 for A and 2/5 for B. Capitals of 5 lakh rupees 5 lakhs and rupees 2,50,000 respectively. ए का कैपिटल कितना है 5 लाख है और बी का कैपिटल 2,50,000 है ऑन 1 अप्रैल 2017. ये आपका अकाउंटिंग ईयर का फर्स्ट डेट. ईच पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है 5 लाख और 2,50,000 इस पर निकाल लीजिएगा. इसका 50,000 हो जाएगा, इसका 25,000 हो जाएगा. 50,000 फॉर ए एंड 25,000 फॉर बी. ओपनिंग कैपिटल ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है. तो 5 lakhs इंटू 10/100 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का 50,000 एंड बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,50,000 इंटू 10/100 एंड 25,000. और कहाँ दिखाते हैं, यू नो वेरी वेल दिस विल बी रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए 50,000 and for B 25,000. Total 75,000 you will show here in profit and loss एप्रोप्रिएशन अकाउंट. यहाँ देखिए, यहाँ दिखाया गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 और 25,000, राइट. एंड फॉर दिस योर जनरल एंट्री विल बी, इसके लिए आपका जनरल एंट्री जो होगा वो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट. पहले से आप जानते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 75,000 टू एच कैपिटल अकाउंट टू बीच कैपिटल अकाउंट 50,000 एंड 25,000. और फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफ़र होगा. तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 75,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 75,000. फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन, ये कितना कितना किसका शेयर है, ट्रांसफ़र. ये में से हियर ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एच कैपिटल अकाउंट टू बीच कैपिटल अकाउंट 50,000 and 25,000. After that, transfer it into debit side of profit and loss appropriation account. Generally will be profit and loss appropriation account to interest on capital 75,000. ये बताने की ज़रूरत नहीं है, कई एक बार बताया गया है. इसके पहले आप क्या करेंगे, इसके पहले प्रॉफिट, द प्रॉफिट for the year ended 31st March 2018 prior to calculation of interest on capital 3,75,000. प्रायर शब्द का कर दिया है उपयोग, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है. यदि आफ्टर आता तो इसको हम प्रायर में कन्वर्ट करते, लेकिन यहाँ प्रायर ऑलरेडी दिया है, यानी बिफोर है. ये प्रायर मीन्स बिफोर. तो ये प्रॉफिट जो कहते हो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे. यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो क्रेडिट साइड में इसको लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग प्रॉफिट 3,75,000 एंड will generalize this here profit and loss account debit to profit and loss appropriation account 3,75,000 profit, the transfer of profit to profit and loss appropriation account, right? So this is very clear to you. Now for commission to the partners commission. पिछले क्वेश्चन में हम लोग बनाए हैं पार्टनर्स कमीशन कैसे निकाला जाएगा. सी हियर द लैंग्वेज. ए इज इंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट. ए को कमीशन नेट प्रॉफिट पे 10% दिया जाएगा, लेकिन लैंग्वेज यहाँ देखिए क्या है उसके बारे में. प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन. यहाँ ध्यान दीजिए, बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन. तो इसके लिए कैसे निकाला जाएगा कमीशन को. कमीशन निकालने के लिए यहाँ देखिए एज कमीशन
बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो 3 लाख प्रॉफिट है आपका, 3,75,000 और माइनस कर दिए आप 75,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। तो प्रॉफिट बाकी जो रिमेनिंग प्रॉफिट आया उस पर आप क्या निकालेंगे, ए का कमीशन। 3 lakhs इंटू 10/100 30,000 एंड यू विल शो दिस इन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट, यू नो वेरी वेल। यहाँ दिखाएंगे इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। यहाँ टू कमीशन, ए फॉर ए इट इज 30,000 एंड नाउ फॉर बी। बी के लिए क्या किया जाएगा, पहले देखिए यहाँ व्हाट इज द इंस्ट्रक्शन इन द क्वेश्चन। बी इज इंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 8% नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिडक्ट करने के बाद, एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, और कमीशन भी यदि कोई है तो उसको भी चार्ज करने के बाद, यानी कि दोनों को घटाया जाएगा। आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और आफ्टर चार्जिंग एनी कमीशन ऑल कमीशंस। तो इस प्रॉफिट से दोनों को घटाया जाएगा, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी और फिर कोई कमीशन भी दिया गया किसी पार्टनर को तो उसको भी, और वो जो आएगा फिगर उस पर आप निकालेंगे किसका, बी का कमीशन। और इसके लिए क्या होगा हमारा फॉर्मूला, आफ्टर चार्जिंग कमीशन के लिए बीस कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो 20 कमीशन विल बी कैलकुलेटेड आफ्टर एच कमीशन, ए के कमीशन के बाद में बी का कमीशन कैलकुलेट किया जाएगा। बी हेंस 20 कमीशन 3 lakhs, पहले ही इसमें क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस कर लिया गया है और फिर ए के कमीशन को भी माइनस किया जाएगा, तो दोनों माइनस हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस हो गया और फिर देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस किया गया था तो ये आया था 3 lakhs। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद 3 lakhs और साथ साथ कोई कमीशन पार्टनर का है 30,000 यहाँ था ए का कमीशन, तो इसको भी यहाँ माइनस करके कितना आया 2,70,000 आएगा इंटू रेट ऑफ कमीशन 8 डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, ये आएगा 20,000 20,000 will record in debit side, right, debit side of प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ बी का 20 कमीशन 20,000 और दोनों के कमीशन को जोड़ेंगे ए और बी का, तो ये आपका 50,000 हो गया। ए का यहाँ है एज कमीशन 30,000 और प्लस बी का यहाँ है 20 कमीशन 20,000, दोनों का आप जो लगेगा तो 50,000 है। अब यहाँ 8/100 प्लस 8 क्यों किया गया, यहाँ 8/100 प्लस 8 क्यों किया गया, ये फार्मूला क्यों लगाया गया, ये आपको बताया गया था पिछले क्वेश्चन में फार्मूला के बारे में। देखिए क्या लैंग्वेज यूज किया गया है क्वेश्चन में, बी इज इंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 8% नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। इस तरह से आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन दिया रहे तो रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, प्रॉफिट घटाने के बाद जो भी आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कमीशन घटाने के बाद जो प्रॉफिट आएगा 2,70,000 इंटू रेट ऑफ कमीशन ये 8% और आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन शब्द का प्रयोग किया गया आफ्टर का, देन डिवाइड 8/100 प्लस 8 यानी 2,70,000 इंटू 8/100 प्लस 8 108, इसीलिए यहाँ निकाला गया है कमीशन। वैसे हियर कमीशन हेंस 20 कमीशन 2,70,000 इंटू 8/100 प्लस 8 इक्वल टू 20,000। Now you will find out profit, this profit. Easily you can find out profit.
credit side is more than debit side, then the balance here 2,50,000 will be treated as नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा इन विच रेशियो इज गिवन और नॉट ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। वे अपने लाभ और हानि को 3:2 में बांटते हैं। ये जो 2,50,000 है ये 3/5 2,50,000 इंटू 3/5 1,50,000 और 2,50,000 इंटू 1/5 इक्वल टू 1 lakhs डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी में डिवाइड कर दिया जाएगा। एंड यू नो वेरी वेल व्हाट विल बी द जेनेटी फॉर दिस। जेनेटी के बारे में बिल्कुल क्लियर है। फर्स्ट जेनेटी ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट के लिए पहले से चला रहा है। सो मेनी क्वेश्चंस यू हैव रिकॉर्डेड। आई टोल्ड यू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 3,75,000। Then for interest on capital, two entities required. You know, interest on capital account debit to each capital account to each capital account 50,000, 25,000. And or transfer of interest on capital in debit side of profit and loss appropriation account, profit and loss appropriation account debit to interest on capital account 75,000 each in debit and credit. For commission also, you know, commission के लिए भी आप जानते हैं दो जेनेटी है। ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कमीशन अकाउंट डेबिट 50,000 दोनों को जोड़ करके ए और बी का टू एच कैपिटल अकाउंट 30,000 टू बी कैपिटल अकाउंट 20,000 कमीशन टू पार्टनर्स एंड देन दिस कमीशन विल बी transferred in the debit side of profit and loss appropriation account. The generality will be profit and loss appropriation account debit to commission account 50,000 each. At the end, this is the generality ultimately after preparation of profit and loss appropriation account. Profit and loss appropriation account बनाने के बाद यहाँ से जो ये प्रॉफिट आएगा और जिस जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया इसके लिए जनरलिटी के लिए जो जगह हम लोग छोड़ देते हैं और जनरलिटी क्या रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 2,50,000 टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीच कैपिटल अकाउंट 1,50,000 to 1 lakhs being the transfer of credit balance of profit and loss appropriation account to partners capital account. I hope that you have enjoyed very well in this class and you will do the homework. You will practice at your home. Illustration 8 you will practice at your home. दिस इलस्ट्रेशन नंबर 8 इसको फिर से प्रैक्टिस करना है घर पे एंड इलस्ट्रेशन नंबर 9 विथ जर्नल एंट्रीज और एक और इलस्ट्रेशन बनाना है 9। इसके साथ साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाइएगा 8 और 9 तो 2 इलस्ट्रेशन 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।